بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج کی طرح داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سی ماں ہے، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے حر، اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد. قاتل کو بھی
اتنا کرم ہے مومنو اتنی جفا کے بعد عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے تو ہم بس خدا کے بعد جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث آج ہم بات کریں گے دو موضوعات پر ایک تو فتح مکہ اور دوسرا جو ایام شہادت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام چل رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے قریش ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے تھے اور آپ سے لڑنے کو تیار رہتے تھے لیکن جب اللہ کی مدد اور عنایت سے فتح مکہ ہو گیا جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش نے اسلام قبول کر لیا تو اہل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب کسی بھی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور نہ کوئی آپ کی مخالفت میں کامیاب ہو سکتا ہے چنانچہ فتح مکہ کے بعد عربوں کے گروہ حضور کی خدمت میں آ کر مشرف با اسلام ہونے لگے چنانچہ فتح مکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی معاملہ فہمی وسیع قلبی اور حالات کو اپنی موافقت میں تبدیل کرنے کی عمدہ ترین صلاحیتوں کا مظہر ہے جس نے اہل مکہ کو بلا کسی خون خرابے کے ایک ہی روز میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا ہم فتح مکہ کے حوالے سے علماء کرام سے گفتگو کریں گے اور چونکہ کل کا دن 19 رمضان جب یوم ضربت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی یعنی عبد الرحمن ابن ملجم میں 19 رمضان کی فجر میں مولا علی علیہ السلام کے سر پر زہر آلود تلوار سے عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون نے وار کیا اور مولا زخمی ہو گئے پھر
3 दिन मौला ज़ख्मी रहे, यानी 19 रमज़ान, 20 रमज़ान और 21 रमज़ान को शहादत हो गई। मौला की ज़रब लगने के बाद 19 रमज़ान के बाद अब ये 20 रमज़ान यानी ये दूसरा दिन शुरू हुआ। दूसरे दिन में क्या बातें हुई ऐसी, इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम नसीहतें भी फरमाते हैं और अदल का दर्स भी देते हैं, सब्र का दर्स भी देते हैं। यानी जब मालूम हुआ कि जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी मलाउन ने जब वार किया तो फिर वो फ़ौरन ही मस्जिद से दौड़ा। तो दौड़ते हुए जब पता चला, कुछ असहाबा कराम ने उसको पकड़ लिया कि मस्जिद से क्यों दौड़ता जा रहा है, रंगे हाथों जिसको कहते हैं पकड़ लिया जाता है। और फिर जब मौला के सामने पेश किया गया अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को, तो मौला ने कहा कि ये हाँफ रहा है, इसकी ज़बान खुश्क हो रही है, इसको पानी पिलाओ या इसको दूध पिलाओ या पानी पिलाओ, इसको सैराब करो, ये घबरा रहा है। तो यहाँ पर ये इस वाक़े को कोट तो किया जाता है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी तफसील में और जाऊँगा कि मौला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। मौला ने ये भी बताना चाहा कि जो मेरा चाहने वाला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होगा, यानी मुसलमान होगा, तो वो रोज़ेदार होता है। ये जो मस्जिद में वार करके जा रहा है, इसका मतलब इसका रोज़ा नहीं था। और तभी मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, बताना चाहा कि ये देखो इसका रोज़ा नहीं है। तभी पानी पिलाने की भी एक हिकमत होती है। दुनिया को बता दिया कि जो मुसलमान होता है, रसूल का चाहने वाला होता है, वो कभी इस तरह से वार नहीं करता, वो कभी अहले बैत को तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि अहले बैत को तकलीफ़ देने का मतलब है रसूल को तकलीफ़ देना, रसूल को तकलीफ़ देने का मतलब है कि अल्लाह को तकलीफ़ देने के बारे में। तो लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने अदल की एक और मिसाल कायम की और कहा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि देखो, इसने मेरे एक ज़रब लगाई थी, अगर लगानी है इसको ज़रब, तो अदल का तकाज़ा है कि इसको एक ही ज़रब लगाना। अगर वो उससे मर जाए, वासिल जहन्नुम हो जाए, तो अलग बात, लेकिन अगर बच जाए तो मामला खुदा पर छोड़ देना। ये है अदल। वरना हम इस दौर में अगर लें तो हम तो बंदे ने अगर कुछ हल्का सा किसी से लड़ाई भी हो जाए तो अगला बंदा कहता है जनाब इसको जान से ही मार दो। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने अदल का दर्स दिया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि असहाबा किराम बैठे थे और मौला गुफ्तगू फरमा रहे थे, ज़ाहिर ज़ख्मी भी थे। तो लोगों ने कहा कि जब बातें चल रही थी तो ज़ाहिर ज़ख्मी जब इंसान होता है तो बोलने से सर में तकलीफ़ भी होती है, ज़ोर भी पड़ता है। तो इमाम हसन ने कहा, बाबा जान अगर आप इजाज़त दें तो हम इनसे आज कहते हैं कि आज दर्स जो है वो ज़्यादा देर का ना हो, या आप आज आराम कर लें। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, ये जो मैं दर्स दे रहा हूँ ये बेसिकली अल्लाह के पैगाम को आगे पहुँचा रहा हूँ। अली ने कभी भी अल्लाह के मामलात में अपनी ज़ात को तरजीह नहीं दी, अपनी ज़ात को पीछे रखा, लेकिन अल्लाह के मामलात में आगे आगे रहे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज का दिन गुज़रा। और आज का दिन जब तबीब ये कहता था कि जहर बहुत ज़्यादा जिस्म में भर चुका है, मौला को दूध पेश किया जाए ताकि जहर का असर कम हो जाए। ये बात कूफे में आम हुई तो कूफे के छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूज़ा लेकर दूध लेकर मौला के दरवाज़े पर आ गए और कहते हैं कि हमें पता चला है कि तबीब ने मौला को दूध तजवीज़ किया है, तो हम चाहते हैं कि हम दूध पिए ना पिए, हमारे मौला को सेहत मिल जाए, हमारे मौला की जान बच जाए। तो आज का दिन भी बहुत सख्त है अहले हरम पर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर। तो आज इस मौजू पर भी हम शहादत मौला कायनात के हवाले से भी कि ये 20 रमज़ान का दिन मौला अली अलैहिस्सलाम का कैसा गुज़रा, क्या क्या मामलात रहे, उलमा कराम से हम इस हवाले से भी और फ़तह मक्का के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाएंगे, गुफ्तगू करेंगे और उलमा कराम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आते मुख्तसर से वक्फ़े के बाद देखते रहिए बारान रहमत। आपसे पुष्पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा
बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारानी रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जैसे कि मैंने इब्तिदा में बताया था कि आज का हमारा जो मौजू है, एक तो फ़तेह मक्का भी है और दूसरा ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद जो अगला दिन आया था 20 रमज़ान, उस दिन और 21 को तो मौला की शहादत हो गई थी मौला अली अलैहिस्सलाम की, तो 20 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम के क्या मामलात ज़िंदगी रहे, उस ज़ख्मी हालत में मौला ने क्या क्या नसीहतें की, क्या क्या वसीयतें की, इस हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन की रौनक को दोबाला कर देते हैं अपनी गुफ्तगू से। बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छे अंदाज़ से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान है। बहुत शुक्रिया कि काफ़ी दिन के बाद फिर आपने दोबारा से हमें सआदत बख्शी कि आप तशरीफ़ लाए। दूसरी हमारे साथ नात ख़ान मौजूद हैं और बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ती हैं और अल्लाह ने इनको बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है। मुबश्शिरा आज़म साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहीं। आपसे कलाम का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन मैं शुरू में मौलाना साहब की तरफ आता हूँ कि जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि फ़तेह मक्का के हवाले से भी बात रहेगी, क्योंकि फ़तेह मक्का भी है और दूसरी चीज़ ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम को दूसरा दिन ज़ख्मी हालत में 20 रमज़ान। तो पहले हम शुरू करते हैं, फ़तेह मक्का का वाक़या कैसे पेश आया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व इतरतिका या नूरल्लाह। शुक्रिया फरहान भाई, माशाअल्लाह आपकी सेहरी की ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में देखी जा रही है। पंजाब से मेरे पास बड़े फ़ोन आए हैं माशाअल्लाह कि बड़ी रूह परवर महफिल होती है, यकीनन सेहरी की बरकत वाली बातें सुबह वो दिल नशीं होती हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला और आपको इज़्ज़तें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। तो बड़ा अहम और उन लोगों का भी शुक्रिया कि जो टेलीविज़न देख रहे हैं, जो मोहब्बत पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, दुनिया भर में जहाँ से भी देख रहे हैं, सब जगह से बहुत प्यार मिलता है। सब प्यार करने वाले पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हाज़रीन। अल्लाह इज़्ज़त दे आपको। तो दूसरी ये है कि आयत करीमा जो कुरान मुक़द्दस में से ली है, 15 पारवे से इसका ताल्लुक़ है। अल्लाह फरमाते कुल जा अल हक़, ऐ हबीब आप कह दें कि हक़ आने वाला है और बातिल मिटने वाला है, और बातिल को मिटना ही है, हक़ को गालिब आना है। बिल्कुल, ये तो वादा अल्लाह ने अपने रसूल मुकर्रम से फरमा चुके थे, और अल्लाह अपने रसूल को तसल्ली व तशफ़ी यूँ भी कराता है कि ऐ हबीब आप फ़िक्र न करें, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी आपके लिए बेहतर होगी। एक बात। दूसरी बात ये अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि ऐ रसूल हम ही आपकी जान के मुहाफ़िज़ हैं। तो जिसका मुहाफ़िज़ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर हो, मेरा ईमान ये कहता है कि उस चराग को, मेरे आका तो वो चराग है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है सिराजम मुनीरा, सुभान अल्लाह, दायन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। ये सिराज भी है, मुनीर भी है। तो अब ये जितने गज़वात हुए, 19 गज़वात हैं इस्लाम की तारीख़ के अंदर, उनमें से एक गज़वा फ़तह मक्का है। ये भी एक गज़वा है, मगर हमारे यहाँ शार्ट जो है ना वो सिर्फ फ़तह मक्का हम कह देते हैं, लफ्ज़ गज़वा को हटा देते हैं। इसमें गज़वा भी है, गज़वे का सवाब भी मिला। जी जी। तो गज़वा वो होता है जहाँ आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्सो नफीस तशरीफ़ ले गए हूँ,
कमान संभाली हो ली हो, जैसे हम पहले इसमें ग़ज़वा बदर में वो बयान कर चुके हैं। तो ये भी एक फ़तह मक्का। अब इंतज़ार में था सहाबा किराम सुलह हुदैबिया के बाद, वो इस बात पे बार बार इंतज़ार में थे कि या रसूल अल्लाह आपने मुआहदा तो कर लिया है, हुदैबिया के अंदर सुलह तो कर ली है कुरैश से, अब मुआहदे मामला तय हो गए, वो दिन कब आएगा जिसकी बिशारत आपने दी है कि अल्लाह ताला हमारे हाथों से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही है मक्का फ़तह करेगा। अब वो इंतज़ार में थे तो कुछ कबाइल के साथ मुआहदे हो गए, यानी एक कबीला वो था जिसने अपना मुआहदा कुरैश के साथ किया, और एक कबीला वो था जिसका ताल्लुकदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से थी। उन्होंने मुआहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लिया। और हुदैबिया में ये भी आज़ादी थी, जो छोटे छोटे कबाइल हैं वो जिससे चाहें मुआहदा कर लें, ताल्लुकदारी रख लें। तो जिनके जिससे फ़ायदे थे तो उन्होंने उससे अपनी ताल्लुकदारी बना ली, मुआहदे कर लिए, कारोबारी, तिजारती, दीगर मामलात, माशी। तो अब ये सिलसिले चल रहे थे। कुछ दिनों के बाद जो कुरैश थे उन्होंने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी